Hello everyone. In previous video we completed chapter number 21. I hope you all are well understood. Now we will move on our next and last chapter, chapter number 22. The name is chemical coordination and integration. What is chemical coordination? Coordination तो हमने 21 चैप्टर में पढ़ा कि टू या मोर देन टू ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके कम्बिनेशन करके जो एक्टिविटी करते हैं बॉडी में, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. बट व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन? तो यू ऑल आर नो दैट अवर बॉडी मेड अप ऑफ some kind of chemicals that is called biomacromolecules or biomolecules, right? So that chemical secretes some hormone like structure, or we can say chemicals, that is called chemical, right? So हम यहाँ देखते हैं हॉर्मोन्स के बारे में कि इस चैप्टर में हमको कौन से लोकेशन पे, कौन से ऑर्गन में से कौन सी ग्लैंड होती, हार्मोनल ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दैट सीक्रेट अ हार्मोन एंड दे फंक्शन एंड दे रेगुलेट और दे कोऑर्डिनेटेड अवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी endocrine. What is endocrine gland and hormone? So endocrine glands are ductless gland. कैसी gland है? Ductless glands, and their secretion that is called hormone. The classical definition of hormone is they are produced by endocrine glands, released into the blood and transport to the distantly located target organ. Means what? कि अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन देखें हार्मोन की, सो क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है कि उनका ओरिजिन लोकेशन अलग होता है और उनका जो टारगेट ऑर्गन मीन्स के जहाँ ट्रांसपोर्ट होना होता है वो लोकेशन उससे दूर होता है, और दे ट्रांसपोर्ट इन स्मॉल अमाउंट. The current scientific definition is follow that hormone are non-nutrients chemical, कि उसमें कोई nutrients होता नहीं है, which act as a intercellular messenger, कि वो as a messenger function करते हैं and produce in trace amount. मैंने आपको पहले ही बताया कि वो trace amount में ही produce होते हैं, right? So a new definition cover number of new molecules in addition to the hormone which is secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemical act as a hormone and provide coordination in the vertebrates. कि invertebrates में simple endocrine system होती है, right? और vertebrates में थोड़ी tough, large number of chemical act as a hormone and provide coordination. So let us start first hypothalamus gland, and before that we see all kind of endocrine gland which are located at different position. So endocrine glands and hormone producing diffuse cells or tissues located in different parts of our body constitute the endocrine system. First is pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, parathyroid, thymus, gonads means testes in male and ovary in females are the organized endocrine glands in our body. Even ये सब के अलावा भी gastrointestinal tract, then liver, kidney, heart also produce some hormone, right? First of all, in our brain, in human brain there are three kind of gland which are located in different position. First is hypothalamus, then pituitary and pineal. So today we will see hypothalamus, pituitary and pineal gland, and then near to neck, right? जो हमारी फेरिंग्स होती है वहाँ दो तरह की ग्लैंड होती है, थायराइड एंड पैराथायराइड. देन नियर टू हार्ट वन इज थाइमस, देन पैंक्रियास जो हमारा ऑर्गन है, असिस्टेड डाइजेस्टिव ग्लैंड एज ए फंक्शन करती है, वही उनमें से ही हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टैटिन. देन एड्रिनल ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट अबव ऑफ किडनी के ऊपर
एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके बाद ओवरी एंड टेस्टिस. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑल द endocrine gland, right? So let us see one by one. First of all, we will see hypothalamus. Hypothalamus is the basal part of diencephalon forebrain. It regulates major body function. It contains several group of neurosecretory cells that is called nuclei which produce hormone. बहुत सारे ग्रुप्स के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस हार्मोन. हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय हाइपोफिशियल पोर्टल वेन एंड विथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन. ये आप देख सकते हो यहाँ हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, राइट. उसका लोकेशन दिया है हाइपोथैलेमस का. Then hypothalamus produces two types of hormones. First is releasing hormone which stimulate the secretion of pituitary hormone, and second is inhibitory hormone that inhibit the secretion of pituitary hormone. कि हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड inhibitory releasing hormone. Releasing hormone will stimulate the secretion of pituitary hormone, and inhibitory releasing hormone which inhibits the secretion of pituitary hormone. For example, hypothalamic hormone that is called gonadotropin hormone stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropins. ये जो है वो आपको 12th में आएगा, तब समझ में आएगा. Then what about somatostatins? Somatostatin from hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary. कि सोमेटोस्टेटिन करके भी एक हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है, बट इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी. These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. So the posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. यहाँ आपको हाइपोथैलेमस में सिर्फ दो ही चीज़ याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लोकेशन, राइट, उसका स्ट्रक्चर. उसके बाद उसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कि हाइपोथैलेमस में दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन और इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. दूसरा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में से, बट इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस में जो भी सेल्स होते हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, राइट. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. पिट्यूटरी ग्लैंड उसका लोकेशन दिया है यहाँ. सभी ग्लैंड में आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखने हैं. सभी ग्लैंड में सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखने हैं आपको. लोकेशन, देन हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, राइट. तो यहाँ हम पिट्यूटरी ग्लैंड में देखें तो लोकेशन इन अ बोनी कैविटी दैट इज कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इट अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. कि सेला टर्सिका करके एक बोनी कैविटी है माइंड में, ब्रेन में, वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है विच इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक. बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis constitute 2 portions, pars distilis and pars intermedia. pars distilis में से 5 हार्मोन रिलीज होते हैं, pars intermedia में से 1 हार्मोन रिलीज होते हैं, and pars distilis is
term as the anterior pituitary also, right? So there are two regions of pituitary gland, that is adenohypophysis and neurohypophysis. Neurohypophysis release two hormone, oxytocin and vasopressin. Adenohypophysis have two region, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis में 5 hormone में first is growth hormone, second is prolactin hormone, third is thyroid stimulating hormone, fourth is follicle stimulating hormone, and fifth is गोडेनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें दो हार्मोन आएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। एंड जो पार्ट्स इंटरमीडिया है उसमें से मार्स मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेट अस सी इन डिटेल। यहाँ जो FSH दिया है उसकी जगह एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आएगा, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस फॉलोइंग हार्मोन, जो मैंने आपको लिस्ट समझा दिया था, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड गोडेनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और उनका मेल और फीमेल में दोनों हार्मोन का फंक्शन अलग अलग होता है, जो आपको डिटेल में 12th में 3rd चैप्टर में देखना है। सो पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट ओनली वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। In human, pars intermedia fuse with pars distalis. So neurohypophysis is also known as the posterior pituitary. Store and release two hormone that is called oxytocin and vasopressin के posterior pituitary है, जिसमें से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। Both are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. Hormone of anterior pituitary effects. First is growth hormone. ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है विच स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी दैट लीड्स टू जायंटिज्म, की ज़्यादा बड़ा हो जाता है पर्सन, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से एबनॉर्मल ग्रोथ उसको बोलते हैं। और जब ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन होता है दैट रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ एंड रिजल्टिंग पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मीन्स के छोटे साइज का पर्सन होता है, राइट। हमने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे होंगे जिसका जो हाइट होता है वो कम होता है ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ GH, राइट। So on maturity, excessive secretion of growth hormone shows serious physical changes, कि मैच्योरिटी पे हम अगर फोकस करें तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से फिजिकल चेंजेस आते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्रोमेगली एंड लीड्स टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इमेच्योर डेथ, राइट। देन सेकेंड हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, it regulates the growth of mammary glands and formation of milk in them. Then thyroid stimulating hormone stimulates synthesis and secretion of thyroid hormone, which is secreted from thyroid gland, which we'll see in detail in next session in thyroid gland. Then adrenocorticotropic hormone, which stimulates synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from adrenal cortex. Adrenal cortex, it is the region of adrenal gland which is located on kidney, right. Then luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, both hormones stimulate gonadotrophic activity and hence they are called gonadotrophic hormones. So let us see gonadotrophic hormones की activity in male. It stimulates the synthesis and secretion of hormone that is called androgen from testes in male. FSH and LH regulates spermatogenesis. Spermatogenesis means what? Formation of sperm. Spermatogenesis means what? Formation of sperms.
In female, LH induced ovulation. Ovulation means what? Ovum release फ्रॉम ओवरी, कि ओवरी में से जो जब ओवम रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. सो LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन द कॉपर लुटियम. What is Graafian follicle? What is copper luteum? That you will study in chapter number 3 in standard 12. So not to worry, अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं. FSH stimulate growth and development of ovarian follicle in female. So ऐसा याद रखो कि LH ovulation करता है फीमेल में, राइट? ओके. सो मेल एंड फीमेल में LH एंड FSH हो गया कि मेल में FSH एंड LH रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. उसके बाद MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स on melanocytes which contain melanin, right? कि जो सेल मेलेनिन कंटेन करते हैं दैट इज कॉल्ड मेलेनोसाइट्स, राइट? एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, कि जिसमें मेलेनिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है वो थोड़े ब्लैक होते हैं, और जिसमें मेलेनिन पिगमेंटेशन कम होती है दे आर वेरी फेयर, राइट? सो मेलेनोसाइट्स का जो भी मेलेनोसाइट्स का जो भी रेगुलेशन है, पिगमेंट का रेगुलेशन है, वो करते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. उसके बाद ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कंस्ट्रक्शन. ऑक्सीडेशन पर्टिकुलरली जब बेबी डिलीवर होना होता है तब ये हेल्प करते हैं. देखो, इन फीमेल्स it stimulate a vigorous construction of uterus at the time of childbirth. क्या करता है कि वैगोरस कंस्ट्रक्शन करता है यूट्रस का जब चाइल्ड बॉर्न होने वाला होता है. एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी करता है कि मिल्क को निकालते हैं मेमरी ग्लैंड में, रिलीज करते हैं मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, राइट? सो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बहुत अच्छा है. देन वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन जो है वो हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाता है, कि इट एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन और डायूरेसिस. सो हैंस इट इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH. तो वैसोप्रेसिन को आप एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोल सकते हो, राइट? सो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत लंबी है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से आपको करनी भी है, राइट? बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के तो 2 रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस में से 5 डिस्टिलेस रीजन है, उसमें से 5 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, then adrenocorticotropic hormone, then luteinizing hormone and FSH hormone, right? then parts intermedia है, उसमें से MSH hormone. then उसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस है, उसमें से 2 हार्मोन वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, राइट? और सभी का फंक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसके बाद हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड है 3, उसमें से थर्ड वाली दैट इज पिनियल ग्लैंड. पिनियल ग्लैंड का लोकेशन दैट इज द डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन की, ब्रेन की डोर्सल साइड वो पजेस होता है. उसके बाद उसमें से मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, एंड मेलेटोनिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी. मीन्स व्हाट, कि हम जो भी जब से उठते हैं और मीन्स के 24 आवर्स में जो भी प्रोसेस होती है वो सभी प्रोसेस का रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? मेलेटोनिन हार्मोन थ्रू होता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप, वेकअप साइकिल, देन बॉडी टेम्परेचर,
then influence metabolism, pigmentation, the menstrual cycle as well as our defense कैपेबिलिटी, कि ये सभी जो प्रोसेस है स्लीप से लेके बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी, सभी के जो भी रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन से होता है, दैट इज कॉल्ड मेलेटोनिन। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 24 आवर्स की जो भी रिदम होती है बॉडी की वो कौन रेगुलेट करता है, कौन सी ग्लैंड करती है, तो पिनियल, कौन से हार्मोन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलेटोनिन, राइट। सो ये जो पीनियल ग्लैंड है वो अच्छे से समझ लेना। और आज हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को पढ़ा है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, देन थाइमस ग्लैंड, देन एड्रेनल ग्लैंड, राइट। सो वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन, सभी ग्लैंड को हम देखेंगे धीरे धीरे। सो अभी तक हम यहाँ रखते हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी थायरॉयड, पैराथायरॉयड एंड थाइमस ग्लैंड, राइट। टिल दैट, थैंक यू।